Jai Hind प्यारे दोस्तों, today we have again come up with the beautiful video related to idiom and phrase for your exam of CDS. As you know, there's a demand and 10 questions or 5 questions you will definitely get in your every exam. So these all questions will definitely help you, and these are old PYQS 2019 question I have take from the previous year, and I'll also show how to learn and how to attempt the question and how to learn these idiom phrases through the connection. So this will very helpful for all of you, so please stay connect with it and watch till the end. It will definitely help you. As you can see, as you know, the CDS exam demand smart work over hard work. In today's video we are going to cover the most frequent high yielding idiom that really CDS loves to repeat again and again. Okay, the very first question, as you can see on your screen, a match made in heaven. This is the question number first, and you have to tell me the answer. These are the four options you have. The very first, a marriage that is solemnized, niced formally, a marriage that is unsuccessful, a marriage that is likely to be happy and successful, a marriage of convenience. So what will be the answer according to you? So let me connect with it. Just read it. A match made in heaven. This is very easy, and you can see a picture in front of your eyes. A marriage made a match made in heaven means to say there's a two person whose marriage, we always say, usually say, हम कहते हैं ना कि उनका तो वो जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं, तो जस्ट वही कि ऐसी जोड़ी जो हमेशा सक्सेस रहे, खुश रहे, सदाबहार रहे. सो यू कैन से अ मैरिज दैट इज लाइकली टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, यानी कि अ मैच मेड इन हेवन, यानी कि स्वर्ग में से ही जोड़ियां बन के आती हैं, भगवान ही जोड़ियां बनाकर भेजता है. तो इस प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये इमेज को देख सकते हैं किस प्रकार से दोनों खुश हैं, इनकी जोड़ी बन चुकी है, आप भी खुश हो जाओ. ओके, ठीक है. एंड यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार से आपको इमेज से याद रखना है, और दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. एंड आप कभी भी याद, इससे कभी भी आप भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. चलिए कोशिश करते हैं. अ कल्चर वल्चर. अ कल्चर वल्चर, आपको बताना है क्या आंसर होगा. आपके सामने मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ. समवन हु इज very keen to experience art and literature, someone who wants to defend ancient culture, someone who is ashamed of one's own culture, someone who looks at her his culture critically. Now you can see on the screen there's a vulture, and it is reading something, means to say a culture vulture. A culture vulture, you can say. Now according to the image, can you connect, means to say a person, and you can also notice a goggle over here. So you can say a person who is keenly observe or experience art and literature, or you can say lover of reading, like this. Someone who is very keen to experience art and literature. This is the answer for this. Are you getting the point? So this image definitely depict this theme. Okay, next, as you can see, a death blow. A death blow, you can know, definitely a death blow. A death blow, इसका मतलब क्या हो सकता है death blow का? कोई ये भी कह सकते हैं बाल 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 बचना, ऐसे भी बोल सकते हैं कई लोग. तो आपको बहुत ही आंसर मुझे सटीक देना है. टू बी वेरी नियर डेथ, या ये हो सकता है टू बी डीपली अफ्रेड ऑफ डेथ, या फिर ये हो सकता है टू वीट समवन टू डेथ, या फिर आपका हो सकता है एन ऑक्शन और इवेंट विच कॉजेज समथिंग टू एंड और फ्रेल. तो इसका आप बता सकते हैं क्या आंसर हो सकता है. तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि इसका जो आपका आंसर है, इसका आंसर क्या होगा. एन इवेंट और एक्शन विच कॉज समथिंग टू एंड और फ्रेल, मतलब फेल हो जाना और समथिंग जब खत्म हो जाए. यानी कि आप देख सकते हैं ये सारे लोग यहाँ जूरी मेंबर थे, जज साहब थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेविल, इसने इनको भड़काया और कैसे नहीं कैसा डिसीजन लिया. ये किताब, यानी कि कानून की किताब टूट गई इनके डिसीजन से. ये इमेज शो करती है कि ऐसा एक्शन और इवेंट ऐसा लेना जिससे सारी चीजें खत्म हो जाए, कोई चीज खत्म हो जाए, यानी कि ये गलत डिसीजन ले लिया गया है. ठीक है ना. टू एंड और फ्रेल, यानी किसी की जिंदगी खत्म हो गई होगी, सिंपल सी बात है. सो यू कैन कनेक्ट थ्रू दिस इमेज एंड द थीम ऑफ दिस idiom, okay, or phrase, you can say. So this is the these are the three idiom we have completed, and with the answer beautifully. Now let's move on for the next part, this one. As you can see on your screen, the next one is amazing and also beautiful. The jewel in the crown. It is also
amazing, and most of the time it is repeated again and again in different exams. The jewel in the crown, the jewel in the crown means to say this is the crown, and you can notice crown is already valuable, but there's a lots of the jewel you can see. There's a ruby and there's a diamond over there, means to say it become more valuable than we are thinking. Okay, the valuable thing means to say very valuable thing. द ज्वेल इन द क्राउन, आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि मतलब आपका क्राउन तो ऑलरेडी ही बहुत वैल्यूएबल होता है, उसमें ज्वेलरी और आपने लगा दी, तो इससे मतलब ये बहुत वैल्यूएबल हो गया। प्रत्येक ऑप्शन क्या मिलते हैं? समवन हु हैज मैनी स्किल, नो। समथिंग दैट वन वांट्स, नो। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन ग्रुप ऑफ थिंग्स, हाँ ये हो सकता है। द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द किंग, नो ये तो हो ही नहीं सकता। हमेशा याद रखें इडियम फ्रेज कभी आए और उसी से रिलेटेड ऐसा मिले, द ज्वेल इन द क्राउन, वो किंग, जैसे किंग क्राउन पहने, आपको ऐसा लगेगा कि किंग पहनता है क्राउन, नो। तो कभी भी ऐसा सेम एज इट इज उसके तो कभी होता ही नहीं है, ये हमेशा याद रखें, उसको तो पहले एलिमिनेट कर दें। द आंसर इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द ग्रुप ऑफ द थिंग्स, यानी सबसे प्रीसियस चीज यही होता है ज्वेल इन द क्राउन। क्लियर ना? सो आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज अ वे, होपफुली you are getting to how we have to connect this, and I'll continue this series. Okay, no problem, don't worry. You have to just mug up all these things and also note it down. Next 5, to live in a fool's paradise. To live in a fool's paradise, as you can notice, to live in a fool's paradise, आप सबसे पहले इमेज की तरफ देखें, फिर कनेक्ट करते हैं, फिर आंसर पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पूरा शहर बिजी है, और ये व्यक्ति देखिए एक शहर पे ट्री लगा है और अपनी एक ऐसे इमेजिन, ऐसे तो कोई रह नहीं सकता ना, इमेजिन दुनिया को बना कर लिखता है वेलकम टू फूल्स पैराडाइज, हैप्पीनेस इज रियल, मतलब खुशी खुशी रह रहा है, और ये सारे लोग अपने अपने बिजी हैं। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी मूर्ख की दुनिया में रह रहा है जहाँ पे एक्चुअल में खुशी है नहीं, बस ये ढूंढ रहा है। देखते हैं आंसर, देखते हैं। टू लिव अ लाइफ दैट इज डिसऑनेस्ट, रॉन्ग। टू बी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट, नो। टू बी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट हाउ बैड रियली सिचुएशन इज, इसको पढ़ लीजिए। एंड टू बिलीव दैट थिंग्स यू वांट will happen, no. To enjoy yourself by spending lot of money, no way. So इसका आंसर होगा ये, to be very happy का भी, you will not accept how bad situation really, यानी कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि सिचुएशन कितनी बुरी है, यानी कैसी है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और आप अपने ही जीवन में अपने आप से खुश हो, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, मूर्खों की दुनिया में। मीन्स टू से हिंदी में आप कनेक्ट कर सकते हो ऐसे भी, अदरवाइज ये आपका है कि बैड सिचुएशन में भी आप, जैसे लाइक इस समय हर चीज के महंगाई बढ़ चुकी है और कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर भी लोग खुश हैं कुछ, है ना? तो इस प्रकार से उसको टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज हम कह सकते हैं। ऐसे ही खुशी का माहौल तो नहीं है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट, अ rotten apple. A rotten apple, now you can notice here there's lots of the people over here, and now there's 2 and 3 people who has a spot over there on their costumes and dress, you can see. And you can also notice there's a bucket and lots of the apple in it, and there's a one apple is very rotten. So what you can say now according to this image? Now can give me the answer? The very first, to remove something which is rotten, no way at all. क्या मतलब कोई चीज rotten जो सड़ गई वो चीज उसको फेंक देना, ऐसा कहना? One bad person, a group of good person, ऐसा हो सकता है क्या? A loving and kind person, no way. A rotten book, already negative sense दे रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? A disorganized person which with bad habits, ये हो सकता है क्या? इन दोनों में से कुछ हो सकता है, तो मुझे बताइए इस ग्रुप में से एक व्यक्ति ऐसा है, ऐसे ग्रुप में से ये दो ही ऐसे हैं, यानी कि वन बैड पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ गुड पर्सन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी आपका वन बैड पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ बैड, इन अ वन बैड पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ गुड पर्सन, तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं। ये आपका सिंपल सा आंसर रहा, तो आपको इस प्रकार से कनेक्ट करना है। आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको मैं इमेज इसलिए रखा हूँ कि ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। प्रैक्टिस भी करेंगे तो इमेज के थ्रू याद करेंगे, यहाँ प्रैक्टिस भी कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और यहाँ पे हमें लर्न भी हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ओके, चलिए इनको फेस करते हैं। द वेरी फर्स्ट, एज यू कैन सी, टू बोट विथ योर फीट, टू बोट विथ योर फीट। अब आपको बताना है, ये इसकी इमेज है, बहुत सारी जनता है और लिखा है बोट विथ योर फीट, यानी टू शो यू डू नॉट सपोर्ट, यानी टू बोट विथ योर फीट भी दिख रहे हैं, यानी कि अब ऐसा कोई नेता जिसे हम बिल्कुल नापसंद कर रहे हैं और हमने मोर्चा स्टार्ट कर दिए हैं सारी जगह, एंड यू कैन से स्ट्रगल स्टार्ट हो चुके हैं कंट्री में कि हमें अभी ये नेता पसंद नहीं है। टू वोट विथ योर फीट, यू कैन कह सकते हो, यानी कि अभी तक तो हम हाथों से वोट देते थे, अब हम फीट से वोट दे रहे हैं, यानी कि वी डोंट लाइक इट। ओके, और हिम, तो बताइए आंसर क्या है? टू शो दैट यू डू नॉट सपोर्ट समथिंग, हाँ हो सकता है। टू रिप्लेस
something important? No. To change something you must do. To express a particular opinion. तो ये रहेगा आपका to show that you do not support something. यानी कि ये शो करना कि you are not ready to support something because now that person or thing, you can say anyone, it can be, is very harmful for the country. Next thing, let's move on for the next one. To sail close to the wind. To sail close to the wind, यहाँ पे आपको मुझे बताना है, आप देख सकते हैं टू सेल क्लोज टू द वेसल का मतलब होता है नाव को चलाना, ठीक है ना, ध्यान रखना, मालूम है ना, समुद्र में नाव को चलाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सेल। क्लोज टू द विंड यानी हवाओं के पास करीब नाव को चलाना, इसका मतलब क्या है, चलिए बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा माहौल बिगड़ रहा है, अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, माहौल बिगड़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से माहौल बिगड़ रहा है, और ये लहरें आपकी किस प्रकार से डिसऑर्गेनाइज मैनर में यहाँ से वहाँ वो हो रही है, प्रॉब्लम्स दे रही है, और ये बंदा फिर भी अपनी नाव को कैसे चलाने पे एकदम डटा हुआ है, यानी कि ऐसी बैड सिचुएशन में फंस गया है, क्या करे, अब ये निकलने की कोशिश कर रहा है। टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, नो वे, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप मतलब प्रिटेंड करने की कोशिश करो, दिखावा, नो वे। टू बी इन सम अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक बुरी समस्या में फंस जाना, हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये बुरी समस्या ही दिख रही है ना बेकार सी। टू बी डिस्ट्रॉय बाय बिलीफ, नो वे, कि हमारे सोच से ही मर जाना या फिर डिस्ट्रॉय खत्म हो जाना। टू बी समथिंग दैट इज डेंजरस, टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस, या ऐसा काम करना जो बहुत डेंजरस है। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, क्या आपको लगता है, टू वी इन सम अनप्लीजेंट सिचुएशन या टू डू समथिंग दैट, ऐसा काम करना या जो बहुत ही डेंजरस है, या फिर ये, क्योंकि दोनों ही आपको लग रहे होंगे ऑप्शन, दोनों ही, मतलब ऐसा काम करना, टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस, ये भाई उनका रोज का काम है ना, वो रोज ऐसे काम करते हैं, रोज उनको ये बाधाएं मिलती हैं, तो ऐसे काम करना कि जो बहुत डेंजरस हो, डेंजरस काम करना, एंड दिस इज देयर यूजुअल वर्क। ओके, तो ये भी आपका खत्म हुआ। टू बी इन सम अनप्लीजेंट सिचुएशन नहीं हो सकता है। टू सेल क्लोज टू द विंड, समझ में आया, टू सेल क्लोज टू द विंड, तो आपका क्या है कि बिल्कुल डेंजरस वर्क को करना। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। Now next to verbal diarrhea. Verbal diarrhea, as you can see, the mouth of the person and everyone is in shock, you get astonished. So, and there's a paper and there's a writing over there, you can see I can't stop, I more lots of the thing over there, and you can see there's a continuously flow of the word means to say this book, and this book showing word, a person who is talking too much, okay na, so this image is showing too much talking person, and actually ये तो ऐसा होता नहीं किसी के मुंह से इतने सारे कागज निकले, means to say वर्डों को बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति। तो आंसर क्या होगा, टू बी सिक, नो वे, टू टॉक टू मच, हाँ, टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, नो वे, टू बी इन अ गुड ऑरेटर, दिस वन इज टू टॉक टू मच, यानी बहुत ज्यादा बोलना। अ डबल इन ट्रेंड, यू हैव टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। आप देख सकते हैं कोर्ट, यहाँ कोर्ट लिखा है, एक कोर्ट ये होता है जहाँ पे हियरिंग होती है, यहाँ जज साहब बैठते हैं, केस सुनाए जाते हैं, एंड द अनदर कोर्ट वेयर यू प्ले द बैडमिंटन और एनी गेम। ओके, यहाँ लिखा है टेनिस कोर्ट, ओके ना, और यहाँ लिखा है रॉयल कोर्ट। तो एक कोर्ट, ये जो आपका वर्ड एक है, इन मीनिंग दो हैं आपके, तो इसका मतलब क्या हुआ, to look at someone or something twice, no way, association with you cannot succeed, a word which has two meaning, a word which has two meaning, एक वर्ड जिसके दो मतलब हो, इसको बोलते हैं अ डबल इन ट्रेंड। और इस प्रकार से हमने अपने 10 इडियम फ्रेज बहुत ही आसान वे में कंप्लीट किए इस वीडियो में, एंड बिल्कुल यू हैव ऑल्सो अटेम्प्ट क्वेश्चन, यू हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, यू ऑल्सो लर्न हाउ टू कनेक्ट अ vocab, how to connect a vocab through the images. So this will definitely help you to not let your mind to forget all these things. Okay, if you like the video, if you like it, then do comment and subscribe, and you will definitely like it, and we will continue this series, and okay, till then take care, tata, bye bye, and jai hind mere pyare dost.